السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک اور خیر عافیت سے ہوں گے۔ حلالہ ناول کے لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں، امید کرتی ہوں کہ ایپیسوڈ آپ کو پسند آئے گا۔ رات کی سیاہی اور سڑک پر جمی برف کی وجہ سے 10 منٹ کا راستہ آدھے گھنٹے پر مشتمل ہو گیا تھا۔ شکر تھا کہ ابھی پولیس روڈ بلاک کرنے کے لیے نہیں آئی تھی۔ وہ گاڑی بلیو پونس کے پاس کھڑی کرتا بھاگتا ہوا اندر آیا تھا۔ آج پہلی دفعہ اسے اتنی شدت سے احساس ہوا تھا کہ ہاتما اس کی بیوی ہے، اس کی ذمہ داری اور اپنی بیوی کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے۔ وہ سب سے پہلے اس کمرے کی طرف آیا تھا جہاں ہاتما ٹھہری تھی۔ اس نے دروازہ کھولتے ہوئے اندر جھانکا۔ ہاتما کو ماہو خواب پا کر وہ بے ساختہ شکر کا سانس لے گیا، ورنہ اسے یہی ڈر تھا کہ ہاتما کاشان کی موجودگی اور خزان کے چھوڑ کر چلے جانے کا سن کر کوئی شدید رد عمل نہ دے دے۔ وہ اب کاشان کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھتا، اس کے نمبر پر کال کرتا۔ ریزورٹ کی دوسری طرف آتا جہاں ایک طرف لوگوں کے لیے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا اور ہر سٹنگ سیٹ کے پاس چھوٹے چھوٹے آتش دان رکھے تھے۔ لوگ کھانا کھاتے ہوئے برف باری کو انجوائے کر رہے تھے۔ وہ کاشان کو دیکھ کر بمشکل خود کو کنٹرول کرتا صبر کا گھونٹ بھر گیا، ورنہ اسے اس وقت شدید غصے نے اپنی لپیٹ میں لیا تھا۔ اس کا دل چاہا جا کر کاشان کو ایک دو لگا دے، کیونکہ بیا تو چلو انجانے میں یہ سب کر رہی تھی، مگر کاشان تو سب جانتا تھا۔ وہ کیسے ہاتما کے ساتھ یہاں رہنے کے لیے آمادہ ہو گیا تھا؟ تم تو ایئرپورٹ کے لیے نکلے تھے کاشان جو پرسکون بیٹھا ہاتما کے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا۔ کسی طرح بات کرنی ہے۔ خزان کی آواز پر ایک جھٹکے سے اٹھ کر اس کی طرف پلٹا، جو لب بھیجا آنکھوں میں تیش لی اسے دیکھ نہیں بلکہ گھور رہا تھا۔ وہ اس اچانک افتاد پر وہ ابھی تک سنبھل نہیں پایا تھا۔ اس لیے اس سے کوئی بات نہ بن سکی، کیونکہ وہ تو اس کی یہاں موجودگی کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ اسے تو بیا نے کہا تھا کہ وہ خزان کو وہیں روک کر رکھے گی، مگر اب آخر کب تک تم اس طرح کی فضول حرکتیں کرتے رہو گے کاشان؟ یہ جانتے ہوئے کہ تم کسی اور کی بیوی کے ساتھ اس طرح کی پلاننگ نہیں کر سکتے، پھر بھی وہ شدید تیش کے عالم میں بولا تھا۔ میں نے نہیں بلکہ بیا نے یہ پلاننگ کی تھی، اور میں تو اس نے صفائی دینی چاہی۔ بیا تو انجان ہے، اور تم تو سب جانتے ہو، پھر بھی کیسے تم نے گوارا کیا کہ تم یہاں رکو گے، اسے ساتھ لے کر لاہور جاؤ گے؟ کیا وہ تمہارے ساتھ ایک قدم چلنا بھی پسند کرتی ہے؟ خزان کے برف سے ٹھنڈے لہجے پر کاشان لب کاٹ کر رہ گیا۔ اگر میں اس سے بات نہیں کروں گا تو کیسے ہمارے درمیان کے فاصلے؟ اسٹاپ اٹ! اس طرح کی فضول بکواس مجھے نہیں سننا ہے۔ تم ان 2.5 ماہ میں بہت کچھ کر چکے ہیں، جو ہاتما کے ساتھ ساتھ مجھے بھی ناگوار گزرا ہے، مگر میں خاموش رہا کہ چلو تم اپنی کوشش کر کے دیکھ لو۔ مگر نتیجہ ہمیشہ صفر رہا ہے، بلکہ وہ تو اب کسی اور رشتے سے ہی تمہیں دیکھنا شروع ہو چکی ہے، صرف تمہاری ان فضول حرکتوں کی وجہ سے۔ ایک بات میری کان کھول کر سن لو کاشان، وہ اور میرے نکاح میں اور جب تک ہے تب تک تم اس کے آس پاس مجھے نظر مت آنا، اور نہ کوئی ایسی حرکت کرنا کہ مجھے ناگوار گزرے۔ باقی باتیں اب لاہور میں ہوں گی۔ اللہ حافظ۔ خزان کے دو ٹوک انداز پر کاشان کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ وہ کچھ کہنے کی چاہ میں لب کھولنے لگا تھا، مگر خزان کے چہرے کے پتھریلے تاثرات کو دیکھتا خود کو روک گیا اور وہاں سے چل دیا۔ خزان اپنی پیشانی کو مسلتا وہیں کرسی پر ٹک گیا۔ آج کا دن اس کے لیے تھکن کا باعث بنا تھا، تو دوسرا جو ذہنی ٹینشن اسے ان 2 گھنٹوں نے محسوس ہوئی تھی، وہ سب پر بھاری تھا۔ وہ اپنی بیوی کے پاس اپنے بھائی کی موجودگی برداشت نہیں کر پایا تھا، اور کیوں نہیں کر پایا تھا اس سب کی وضاحت بھی ابھی وہ پڑھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ سوری سر، روم تو سب بکڈ ہو چکے ہیں، آپ نے صبح صرف ایک روم ہی بک کروایا تھا، آپ اسی میں اسٹے کر لیں۔ ریسیپشن پر موجود لڑکی کی بات اسے کوفت میں مبتلا کرنے کے لیے کافی تھی۔ صبح جب وہ لوگ یہاں آئے تھے تو رکنے کا ارادہ نہ تھا، صرف فریش ہونے کے لیے ایک کمرہ لیا تھا، مگر اب رات گزارنے کے لیے اسے دوسرا کمرہ چاہیے تھا، کیونکہ ان کی فلائٹ صبح 9 بجے کی تھی۔ اب وہ چاہتا تو بیا کو کال کر کے کوئی بھی روم لے سکتا تھا، کیونکہ یہ ریزورٹ اس کے ماموں کا تھا، مگر اس وقت وہ بیا سے بات کرنے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھا، اس لیے اسی روم میں چلایا جہاں ہاتما سوئی ہوئی تھی۔ خزان نے کمرے کی ونڈو پر پردے برابر کیے، اپنا موبائل نکال کر ٹیبل پر رکھا جہاں بیا کی لادادہ مس کالز اور میسجز تھے۔ موبائل آف کرتے ٹیبل پر رکھ کر اپنی ہوڈی اتاری جو سنو فال کی وجہ سے گیلی ہو چکی تھی۔ اس وقت وہ بلیک جینز پر مسٹرڈ سویٹر شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس نے اپنے نائک جوگرز اتارے جو خود بیڈ پر ٹک گیا۔ بیڈ سنگل ہونے کی وجہ سے اتنی جگہ نہیں تھی کہ دونوں فاصلہ رکھ کر سو جاتے، اس لیے جب خزان اس کے ساتھ لیٹا تو اس کا وجود ہاتما کے وجود کے ساتھ لگا تھا، دوسرا وہ اس کی طرف کروٹ لیتی اسے مشکل میں ڈال گئی۔ آپ خزان نے اسے دیکھنے سے احتزاز برتا اور بازو سے پکڑ کے اسے اپنے سے تھوڑا دور کرنا چاہا، جس پر ہاتما نے کسمسا کر آنکھیں کھولی۔ جی آپ دوسری طرف منہ کر کے سو جائیں، بیڈ چھوٹا ہے اس لیے آج کی رات ایسے ہی ایڈجسٹ ہونا پڑے گا۔ اس کی کچی نیند کی لالی سے لبریز آنکھوں میں دیکھتا مدھم لہجے میں بولتا اسے چونکا گیا۔ کیا ہم یہی رات رہیں گے؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جی مجبوری ہے، کیونکہ راستے اب بند ہو چکے اور ہماری فلائٹ بھی صبح کی ہے۔ اس ریزورٹ کے سارے کمرے بک ہو چکے اور مجھے فی الحال سردی سے مرنے کا قطعی شوق نہیں کہ میں اپنا بستر نیچے زمین پر لگا لوں، اس لیے اب ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہوگا۔ خزان تفصیل سے جواب دیتا اس کی طرف سے کروٹ بدل گیا، جبکہ ہاتھ میں اس کے یوں سانس سونے پر خوش ہو گئی۔ اسے خزان کا یوں بیوی والی اہمیت دینا اچھا لگ رہا تھا۔
अगर ये ख्वाब है तो कभी मेरी आंख ना खुले। वो आंखों को मसलती मुस्कुरा दी। बिया कहाँ है? क्या उसे छोड़ा है आप? तभी इसके जहन में बिया का ख्याल आया। जाहिर है उसे छोड़ आए हो तो इस तरह आपके साथ कमरा शेयर कर रहा हूँ। खाजान के साहब जवाब पर मुंह बसोर कर रह गए। इसके दिल में ख्वाहिश थी कि बिया या काशान इनको यूं देख ले ताकि बात ही खत्म हो। सोहा, इसके दिमाग में फौरन एक ख्याल आया। वो अपने मोबाइल की तलाश में इधर उधर देखने लगी। उसे अपना मोबाइल खाजान के तकिए के पास पड़ा नजर आया। इसके ऊपर से हाथ बढ़ाकर इसने मोबाइल पकड़ा, मगर इससे पहले कि मोबाइल का लॉक भी खोल पाती खाजान ने हाथ बढ़ाकर इससे मोबाइल खींच लिया। ये जो आपके दिमाग में नए नए आइडियाज आते रहते हैं, प्लीज इनको फिलहाल छोड़ दे, खुद भी सुकून से सो और मुझे भी सोने दे। काशान इसी रिजल्ट में रुका हुआ है, अब नहीं तो सुबह वो लाजमी हमें देख लेगा कि हमने कमरा शेयर किया। ओके खुश। खाजान के दुरुस्त अंदाजे पर वो भौंचकी सी रह गई थी, जो फिर से पहले वाली पोजीशन में चला गया था। हाथमा खजल सी होती मोबाइल साइड टेबल पर रख, लाइट ऑफ कर दे। वो कोट उतार कर कुर्सी पर रखकर पलटी तो खाजान की आवाज पर सर हिलाती लाइट ऑफ करके कमरे में एकदम से गुप अंधेरा हुआ था। वो जहाँ थी वहीं खड़ी होकर अपने रास्ते की सिमत का अंदाजा लगाती आगे बढ़ी ताकि मोबाइल की टॉर्च ऑन कर सके। खाजान, तभी इसका पाँव खाजान के जूते के साथ टकराया था और वो सहारे के लिए हाथ मारती सीधी खाजान के ऊपर आ गिरी थी। गहरा सांस भरता टेबल लैंप चला गया। ओफ, आप पहले नहीं उसे जला सकते थे? वो उसके मजबूत सीने पर गिरी, झुंझलाकर बोली जिसने फकत उसे देखा था। आपको इतनी अकल तो होनी चाहिए थी कि जब लाइट ऑफ करते हैं तो नाइट लाइट ऑन करते हैं। काज़ान ने उसे कमर से पकड़कर बेड की दूसरी तरफ लिटा दिया और खुद दूसरी तरफ करवट बदलकर आंखें बंद करके हाथमा अपने तेज धड़कते दिल को संभालती रजाई अपने ऊपर अच्छे से लेती लेट तो गई थी, मगर इससे 1 इंच के फासले पर पड़े इस वजूद ने जैसे इसकी सारी नींद चुरा ली थी। उसका चेहरा देखने की शदीद ख्वाहिश लिए ही आंखें मूंद कर सोने की कोशिश करने लगी। रात का न जाने कौन सा पहर था जब खाजान की आंख किसी एहसास से खुली थी। इसने पूरी आंखें खोलकर देखा तो हाथमा को अपने साथ लिपटे देखकर साकित ही तो हुआ था जो सर इसके सीने में घुसा है इसके बिल्कुल साथ लगी उसे मुश्किल में डाल गई थी। वो उसकी बीवी थी, तन्हाई थी, ऊपर से गुर्बत का ये आलम वो ना चाहते हुए इसका कंधा हिला गया। हाथमा, खजान ने इसका हाथ अपने सीने से हटाया, वो हल्का सा कसमसाते हुए और इसके साथ लग गई। हाथमा उठो, वो अपने दिल में शोर मचाते जज्बात से घबरा कर अब की बार इसका कंधा हिला के क्या है खजान, सोने दे। वो आंखें खोलकर फिर से बंद कर गई। खजान ने गहरा सांस भरते हुए इसकी बंद आंखों को देखा जो शायद इस बात से बेखबर थी कि वो उसे किस इम्तिहान में डाल गई है। उठ जाओ लड़की, वरना मुझसे शिकायत मत करना। अब की बार खजान ने उसे धमकी दी थी, जिस पर वो पट से आंखें खोलकर जैसे सूरत हाल जानने की कोशिश करने लगी, मगर उसे इतने ही करीब पाकर थक सी रह गई थी। खजान ने उसे उठते देखकर शुक्र किया था, मगर अगले ही पल वो साकित हुआ जब हाथमा ने बजाय परे होने के इसके सीने में मुंह छुपा लिया था। मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है, प्लीज सोने दे, वो मध्यम लहजे में बोली थी। खजान ने इसकी हरकत पर उसे घूरा था, जो अनजान थी या शायद अनजान बनने का नाटक कर रही थी कि वो एक मर्द के जो इसका शौहर भी था इस पर हक रखता था और इसके सोए हुए जज्बात जगाने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें आग से खेलने का बहुत शौक है क्या मिसेस? खाजा ने गंभीर लहजे में एक दहकती हुई आतिश की थी जो हातमा को खुद में समेटने पर मजबूर कर गई थी। खाजान ने अपने पाँव से इसके पैरों को मसला था, जिससे एक चिंगारी से इसके पूरे बदन में दहकी थी। वो सरस से इससे पीछे हटी थी, मगर अब खाजान का उसे छोड़ने का मूड नहीं था। वो उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब ना सिर्फ खींच चुका था, बल्कि उसे अपने मजबूत गिरफ्त में लेता एक शौक से जसारत भी कर गया था। तुम्हें खबरदार किया था, मगर तुमने मेरी वार्निंग को सीरियस नहीं लिया। अब तुम्हारा मुझसे गिला करना बनता नहीं है। खजान ने इसके कान में सरगोशी से अंदाज में कहा और फिर इसके चेहरे पर झुकते हुए इसके फरार के सारे रास्ते बंद कर दिए। और शायद हाथमा फरार चाहती भी नहीं थी, इसलिए तो वो खुद सुपर्दगी के आलम में हथियार फेंकती इसकी शौक जसारतों और प्यार भरी गुस्ताखियों पर खुद में सिमटती आंखें बंद कर चुकी थी। सुबह जब इसकी आंख खुली तो घड़ी 7 के हिंसे को पार कर रही थी। हाथमा ने सबसे पहले अपने पहलू में देखा, जहां खाजान मौजूद नहीं था। वो कमरे से नजर दौड़ाती उठी, जहां उसकी नजर कुर्सी पर बैठे खाजान पर पड़ी, जो एक हाथ की मुट्ठी भीचे में शानी पर हल्के हल्के से मारता किसी गहरी सोच और इस्तराब में मुब्तला था। उठ गई आप? जल्दी से फ्रेश होकर नाश्ता कर लें, फिर एयरपोर्ट के लिए निकलना है। वो बिना किसी भी तासुर के बोलता कमरे से ही निकल गया। हाथ में इसके अजीबोगरीब रवैये पर उलझन का शिकार होती उठ खड़ी हुई, और फिर जब वो नहा धोकर नाश्ता करके फारिग न हुई, खाजान कमरे में नहीं आया था। चलने का मूड नहीं है क्या? वो नाश्ता करके गुमसुम सी बेदहानी में ही अपने बालों को बार बार कंघी करने लगी थी कि खजान की आवाज़ पर पलटी, जो उसका हैंड कैरी पकड़े सवारी निगाहों से देख रहा था। हाथमा निगाहें झुकाती अपनी शॉल दुरुस्त करते इसके आगे चलती, जो कमरे में एक निगाह दौड़ाता उसके पीछे ही आया था। हाथमा गाड़ी के पास खड़ी शिशु पंच का शिकार हुई थी कि आगे बैठना चाहिए कि पीछे। फिर मुड़कर खाजान को देखा, जो स्पॉट चेहरा लिए सामान डिग्गी में रख रहा था। हाथमा गहरा सांस भरती पिछला दरवाजा खोल कर बैठ गई। खाजान ने खामोशी से आगे आकर ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी दूसरे ही पल
सड़क पर फर्राटे भरने लगे। आत्मा ने खजान को देखा जो बहुत संजीदा तासुरात लिए अपना सारा फोकस ड्राइविंग पर मरकूज किए हुए था। इस वक्त खजान रात वाले खजान से बिल्कुल अलग था। बल्कि इतना संजीदा तो आत्मा ने उसे निकाह के शुरू के दिनों में भी नहीं देखा था। आत्मा न जाने कब तक इस पर नजर टिकाए सोचती रही कि खजान के मोबाइल पर बजती रिंग टोन ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया। हाँ बोलो, नहीं अभी एयरपोर्ट के लिए निकले हैं। काशान को मुझे इल्म नहीं, और प्लीज अब मुझसे इस तरह के सवाल पूछना बंद करो। पहले ही तुम्हारे इस तजस्सुस और नित्य आइडियाज ने मेरी जिंदगी को मुश्किल बना दिया। तुम जानती नहीं हो कि तुम अपने साथ साथ मुझे भी किन उलझनों में डाल गए। अब बस करो। वो दुरुस्त लहजे में बोलता फोन बंद कर गया। आत्मा बिना पूछे भी जानती थी कि वो दूसरी तरफ कौन थी। वो गजान की बातों को मफहूम समझती लब काट कर रखी। उसे यकीन हो चला था कि रात को इनके दरमियान जो कुछ भी हुआ था वो गजान के लिए बाई से परेशानी था। ये बात आत्मा को हर्ट कर गई थी। वो जो सुबह से इस खुशगमानी में थी कि अब इनका रिश्ता मजबूत हो चुका है। फजान ने अगर उसे बीवी का हक दिया था तो अपनी बीवी मानकर ही, मगर इसके तासुरात इसके दिल को बुझा गए थे। वो लोग लाहौर पहुंचते ही अपने अपने कमरों में घुस गए थे। हाथमा जब 4 घंटों की नींद लेकर किचन में जाने के ख्याल से कमरे से निकली तो हॉल में उमारा बेगम को बैठे देखकर पहुंच की रहती। जब से वो यहाँ आई थी आज पहली मर्तबा इसने अमारा बेगम को देखा था, और हाथमा जानती थी कि अगर अमारा बेगम यहाँ तक आई है तो इनका मकसद कुछ और ही है। वो परेशान चेहरा लिए वहीं खड़ी रह गई। इसमें इतनी हिम्मत न हुई कि वो आगे जाकर इनसे सलाम ही कर ले। तभी इसकी नजर किचन से निकलते खाजान पर पड़ी जो कॉफी का मग हाथ में ली इनकी तरफ ही बढ़ा था। कैसा रहा ट्रिप तुम लोगों का? मैं तो बिया से मिलने के शौक में चली आई, अगर तुम कह रहे हो कि वो वहां रुक गई है। अमारा बेगम ने खाजान के बैठते बात शुरू की। जिसके मामू होते हैं वहाँ, खाजान ने जवाब दिया। अच्छा, काशान बता रहा था कि तुम लोग कल रात इसके मामू के रिजॉर्ट में रुके थे। अमारा बेगम की बात पर हाथमा ने खाजान को देखा जिसने शायद नजरें चुराई थी। मैंने तो शुक्र किया कि बिया को कुछ इल्म नहीं हो सका, वरना फिर हर एक को वजाहतें देनी पड़ती। इसलिए अब हम सोच रहे हैं कि हलाला तो हो चुका, अब इस मामले को और लटकाना नहीं चाहिए। तुम्हें भी 3 माह होने वाले हैं लंदन से आए हुए। तुम्हारे काम का भी हर्ज हो रहा है, और काशान भी बहुत डिप्रेस्ड रहने लगा। हमारा बेगम अपने आने का मकसद वाजे करती। फातिमा के साथ साथ खाजान को भी चौंक आ गई। खाजान दूसरे ही पल अपने चेहरे के तासुरात नॉर्मल करता कॉफी के घूंट भरने लगा। हाथमा इसकी खामोशी से खौफजदा सी हो गई, जो बिना कुछ कहे फकत सर हिला गया था। सोहा लोग भी नेक्स्ट वीक आ रहे हैं तो हाथमा वहाँ शिफ्ट हो जाएगी। इसके बाद फिर हम काशान के साथ निकाह करके उसे अफंदी हाउस ले जाएंगे। हमने ये तलाक वाली बात लोगों से छुपाई हुई है, इसलिए अब दोबारा से दोनों की धूमधाम से शादी करेंगे। और तुम ये शादी बिया के साथ जरूर अटेंड करने आना, ताकि मैं सबसे तारुफ करवा सकूं कि मेरी दूसरी बहू भी बहुत प्यारी है। इनके मुस्कुराते चेहरे पर खजान के तासुरात स्पॉट ही रहे थे, मगर इसका दिल एकदम हर चीज से बेजार हुआ था। यहाँ तक कॉफी का मग भी इसने वापस टेबल पर रखा और उठ खड़ा हुआ। आप डिनर करेंगी? इनकी बातों के बरक्स सवाल पर हमारा बेगम भी हैरान हुई, मगर फिर सर झटक कर मुस्कुराई। मेरा भी आज इरादा तो तुम दोनों भाइयों के साथ डिनर करने का है। तुम लोगों के बाबा आउट ऑफ कंट्री है, इसलिए आज मैं इधर ही डिनर करूंगी, बल्कि बनाऊंगी भी खुद अपने बेटों की पसंद का। इनके प्यार और ममता भरे लहजे पर वो सर हिलाता अब इनके सामने से हटना चाहता था, इसलिए अपने मोबाइल पर कोई नंबर डायल करता। इनको एक्सक्यूज करता वो जब अपने कमरे की तरफ जाने के लिए मुड़ा तो वहां पत्थर बनी हाथमा को देखकर लब खींच गया। वो सफेद चेहरा और खुश्क आंखें लिए इसी की तरफ देख रही थी। खाजान इसकी शिकवा कर आंखों से नजरें चुराता इसके करीब से गुजरता आगे निकल गया। हातमा, मेरी बेटी कैसी हो? तभी हमारा बेगम की इस पर नजर पड़ी तो हातमा जबरदस्ती की मुस्कुराहट लबों पर सजा इनकी तरफ बढ़ी थी। रात को डिनर पर काशान भी आ चुका था। इसकी मुसलसल मुस्कुराहट और खजान की जामिद खामोशी हातमा का खून जला रही थी। वो खजान से बहुत कुछ कहना और सुनना चाहती थी, मगर हमारा बेगम की वजह से लबों पर कुफ लगाए वो चंद लुक में ही जहर मार कर सकी, वरना इसका दिल तो इनके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठने को भी ना था। मैंने वकील को पेपर्स बनाने का बोल दिया है, कल तक आ जाएंगे। तुम दोनों को बस साइन करना होगा। इसके बाद मैंने अपने और हातमा के निकाह के पेपर भी तैयार करवा लिए, जिसमें मैंने तलाक का हक भी हातमा को दे दिया, और साथ हक महर और बाकी की हर डिमांड भी हातमा की मर्जी के मुताबिक होगी। मैं एक दफा जो गलती बल्कि गुनाह कर बैठा हूँ, इसकी माफी सारी जिंदगी भी तुमसे मांगता रहूं तो कम है। लेकिन फिर भी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें वो सब कुछ दूं जो मैं तुम्हें पहले नहीं दे सका। काशान पस्त लहजे में बोलता अपनी तरफ से हातमा का दिल साफ कर रहा था, मगर वो ये नहीं जानता था कि हातमा को ये सब सुनना कितना नागवार गुजर रहा था। इसने एक काटदार निगाह से गाजान को देखा जो खाने में यूं मसरूफ था जैसे इसके अलावा कोई और मौजूद ही ना हो। कशान बहुत कर्ब में रहा, जितनी अजियत इसने तुम्हें दी थी इससे ज्यादा बर्दाश्त कर चुका है। लेकिन इस सबसे इस चीज का तो पता लग चुका है कि कशान तुमसे किस कदर मोहब्बत करता है, वरना कोई मर्द ऐसे नहीं करता। अमारा बेगम कशान के हक में ना बोली कैसे हो सकता था? इससे पहले कोई कुछ और बोलता खाजान का मोबाइल बजा था। जहाँ यासिर नवाज कॉलिंग था वो कॉल पिक करके, व्हाट? बाबा को हार्ट अटैक? खाजान दूसरी तरफ से हानि की रोती आवाज पर एक झटके से उठा था।
یاسر نواز کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، یہ خبر ایسی تھی کہ غازن فوراً لندن جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اسے 2 گھنٹے بعد کی فلائٹ مل گئی تھی، اس لیے اپنا ضروری سامان رکھتا وہ بہت پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ ہاتما اس کے پاس جا کر اسے حوصلہ دینا چاہتی تھی، مگر اس کے قدم وہیں جمے رہے تھے۔ جب وہ اپنا بیگ لے گھر سے نکلنے لگا تھا تب بھی ہاتما اس کے سامنے نہ جا سکی، جو بنا اس کی طرف دیکھے کاشان کے ساتھ ایئرپورٹ کے لیے نکل چکا تھا۔ ہاتما دم سادے وہیں کچن کے پاس بیٹھتی چلی گئی۔ اسے غازان کا یوں جانا بے چینی میں مبتلا کر گیا تھا۔ اس کی زندگی کا یہ موڑ اس کے لیے کیا کچھ لانے والا تھا وہ نہیں جانتی تھی، مگر ایک بات تو پکی تھی کہ اگر غازان نے اسے اپنی زندگی سے نکال بھی دیا تو وہ کبھی مر کر بھی کاشان سے شادی نہیں کرنے والی تھی، چاہے اس کے لیے اسے اپنے ماموں سے قطع تعلق ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ وہ نہیں جانتی تھی کب اس کے دل نے بغاوت کی تھی اور وہ غازان کو اپنا دل دے بیٹھی تھی۔ کہتے ہیں نا، محبت بڑی خاموشی سے، آہستگی کے ساتھ، نامحسوس طریقے سے دل پہ ایسے قبضہ جماتی ہے کہ فرار مشکل ہو جاتا ہے، اور یہی اس کے ساتھ ہوا تھا۔ پتہ نہیں وہ کٹھور شخص آہستہ آہستہ اس کے نازک دل پر اپنی محبت کے قدم اتنی مضبوطی سے جما چکا تھا کہ اب کسی اور کے لیے جگہ نہ تو اس کے دل میں تھی اور نہ زندگی میں بچی تھی۔ یاسر نواز کو دوسرا ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ پہلا ہارٹ اٹیک ان کو ہینا کی وفات کے 1 ماہ بعد ہوا تھا، جو کہ مسلسل ہینا کی یاد اور اس کے جانے کے غم میں آیا تھا، کیونکہ ان کے لیے اپنی جان سے پیاری بیوی کے بغیر جینا محال تھا۔ مگر انہوں نے اپنے دونوں بچوں کے لیے خود کو مضبوط کیا تھا، اور اب کیا وجہ بنی تھی، خزان جاننے سے قاصر تھا۔ اس لیے آتے ہی وہ سیدھا ہسپتال آیا تھا، جہاں بیا کے بابا نے اسے کافی دلاسا دیا تھا کہ ان کی حالت اب خطرے سے باہر ہے۔ وہ ہانی کو اپنے ساتھ لگاتا، اس کی ہمت باندھتا، اپنی پریشانی اور غم کو چھپا گیا تھا۔ پونے 8 گھنٹوں کے سفر میں وہ صرف یاسر نواز کے لیے ہی دعا گو رہا تھا۔ ہانی، میں ڈاکٹر سے مل کر آئے ہوں، بابا بالکل ٹھیک۔ میری جان، تم ایسا کرو انکل کے ساتھ گھر جاؤ اور لائبہ بھیا کی بہن کے ساتھ ہی رہنا، میں کل تمہیں وہاں سے پک کر لوں گا، اوکے؟ وہ جانتا تھا کہ کل رات سے ہانی ہسپتال میں تھی، اس لیے اسے زبردستی گھر بھجوا کر خود پھر سے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، جنہوں نے اسے بھرپور تسلی سے نوازا تھا کہ وہ اب خطرے سے باہر تھے، بس ہوش میں آنے کی دیر تھی۔ خزان کو مسلسل پاکستان سے امارہ بیگم، فیاض افندی کے فون آ رہے تھے۔ وہ امارہ بیگم کی کال ریسیو کرتا، ان کو یاسر نواز کی کنڈیشن کے بارے میں آگاہ کرتا، تسلی لینے کے بجائے دے رہا تھا، کیونکہ وہ ان کے اکلوتے بھائی تھے، اس لیے وہ بہت پریشان تھے۔ اگلے دن صبح 10 بجے یاسر نواز کو ہوش آیا تھا، جس پر غازان سجدہ شکر کرتا ان کے پاس چلا آیا۔ غازان وہ اسے دیکھ کر خوش ہوئے تھے، جو ان کے پاس جا کر ان کی پیشانی چومتا، ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گال پر لگا گیا۔ ارے میرا شیر پتر اتنا کمزور کیسے پڑ گیا؟ وہ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کے ہلکے پھلکے انداز میں کہتے، جیسے ماحول کی کثافت کو دور کرنے لگے، آپ کا بیٹا شیر آپ کے دم سے ہے بابا، اگر آپ نے ماما کی طرح مجھے چیٹ کیا تو یاد رکھیے گا، میں کبھی بات نہیں کروں گا آپ سے۔ آپ لوگوں کو ہماری ذرا پرواہ نہیں، بس اچھے میاں بیوی ہونے کا فرض نبھانا آتا ہے۔ غازان خفگی سے شکایت کرتا، ان کو بہت پیارا لگا، وہ ساختہ مسکراتے۔ آپ مسکرا رہے؟ ان کو مسکراتا دیکھ کر وہ پرسکون ہوا تھا، مگر بظاہر ناراضگی سے بولا، ارے یار، تم سال میں 1 دفعہ تو پیار کا اظہار کرتے ہو، اب بندہ وہ بھی انجوائے نہ کرے؟ سچی یار، تمہاری بیوی تو تم سے اقرار سننے کے لیے ہی ترستی رہے گی۔ یاسر نواز کی بات پر اس کے چہرے پر ایک افسردہ سی مسکراہٹ آئی تھی۔ اس کے خیال میں ہاتما کا چہرہ آیا تھا، جو آتے ہوئے بہت آسو امید بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ کچھ تو امید کے جگنوں اس کے آنچل میں ڈال جائے، اور وہ بے دردی سے اسے نظر انداز کرتا چلا آیا تھا۔ اچھا آپ بتائیے، کیسا فیل کر رہے؟ کوئی درد تو نہیں ہو رہا؟ میں انکل کو کال کر کے ہانی کو بلا لیتا ہوں، رات سے 40 کالز کر چکی ہے اور وہ آج اسکول بھی نہیں گئی ہے۔ وہ سر جھٹکتا ان کا دھیان ہانی کی طرف دلانے لگا، جو جانچتی نگاہوں سے اسے جیسے اندر تک پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ کیا کھائیں گے؟ بلکہ ڈاکٹر کو بلا کر لاتا ہوں، آپ کو چیک کر اور بتائیں کہ آپ کیا کھا سکتے ہیں اس وقت۔ دوسرا، آپ کو ڈسچارج کب تک کر رہے ہیں؟ مجھے پتا ہے آپ نے۔ خزان کی مسلسل جمی نگاہوں سے گھبراتا ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ کیا خود کو پاکستان میں چھوڑا ہے؟ ان کے لبوں سے نکلتے الفاظ اسے ساکت کر گئے۔ ان کی فائل کی طرف جاتے اس کے ہاتھ تھمے تھے۔ ارے کیا دماغ ہل گیا آپ کا؟ اگر پاکستان میں چھوڑ آیا ہوں تو یہ میرا بھوت تو نہیں جناب والی صاحب، میں بھی ڈاکٹر سے مل کر آتا ہوں۔ وہ اپنی طرف سے حشاش بشاش لہجے میں بولتا ان کی توجہ اپنے سے ہٹانے لگا، جس پر فقط پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پر آ گئی۔ میں نے کہا تھا مت کرو، حلالہ کرنا آسان ہے مگر اپنی بیوی کو چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ کمرے سے نکلتے اس کے کانوں میں یاسر نواز کے الفاظ پڑے تھے۔ وہ لب بھیجتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلا تھا۔ کوریڈور میں آ کر دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا ہو کر گہرا سانس لی۔ مجھے پاکستان راس نہیں آیا بابا، اس کے لب ہلے تھے۔ وہ یاسر نواز کو لے کر گھر آیا تھا، ان کو ان کے کمرے میں لٹا کر کچھ دیر ان کے پاس بیٹھ کر اپنی موجودگی میں ان کو پرہیزی کھانا کھلا کر جب وہ اپنے کمرے میں آیا تو 3 ماہ بعد اپنے کمرے میں قدم رکھتے ہی اسے ایک سکون سا محسوس ہوا۔ اف، مسلسل جاگنے اور سفر کرنے سے وہ تھک چکا تھا، اس لیے سب سے پہلے اس نے گرم پانی سے شاور لیا، پھر آرام دہ لباس میں وہ بالوں کو بغیر کنگھی کیے ہاتھوں سے ہی سیٹ کرتا۔ بیڈ پر آ کر ٹک گیا، اس نے موبائل کی طرف دیکھا جہاں بیا کی کالز تھی۔ وہ لندن واپس آ چکی تھی، اب اس سے ملنے کی خواہش رکھتی تھی۔ وہ گہرا سانس بھرتا، موبائل اپنے ہاتھ میں لے کر
अपनी कॉल हिस्ट्री पर चला गया, जहां एक नंबर को देखकर वो एक पल को रुका था। फिर यस का बटन पुश करता मोबाइल कान से लगा के, मगर अगली तरफ से कंप्यूटर चीख चीख कर कहने लगा कि आपका मतलूबा नंबर ऑफ है। खजान ने कॉल काट कर वो नंबर सेव करने के लिए मिसेस के नाम पर ओके कर दिया और फिर बिया के आने वाले मैसेज का रिप्लाई देते सोने के लिए लेट गया। अभी फिलहाल वो सिर्फ सोना चाहता था। वो जब चंद घंटों की नींद लेकर उठकर नीचे आया, यासिर नवाज के रूम से हानि और लाबा की बातों की आवाज पर गहरा सांस लेता कमरे में दाखिल हुआ। इस कदर तेज आवाज है तुम लोगों की बाहर तक जा रही। वो बिया को हाय बोलता यासिर नवाज के पास जाकर इनका हाल अहवाल पूछता। साथ रखी कुर्सी पर संभाल गया। हानि यासिर नवाज के साथ बेड पर बैठी थी, जबकि बिया सामने सोफे पर बरत जमान थे। अंकल, आप देख रहे हैं इसे बजाय इसके कि हमें शाबाश थे। हमारी वजह से अंकल की सेहत पर खुशगवार असर पड़ा है, उल्टा हमें बातें सुना रहे। और अंकल, आपको पता है ये कितना गुस्सीला हो गया। इसकी बात पर बिया ने खपकी से देखा था। ये कब गुस्सीला नहीं था। यासिर नवाज के मुस्कुराते लहजे पर गाजान हंस दिया। पर अब ज्यादा हो गया, अब तो बात बात पर काट खाने को दौड़ते। सच्ची पाकिस्तान में जाकर ये टोटली बदल चुका है। पहले जो मुरब्बत में कभी किसी बात पर मान जाता था, अब तो वो भी नहीं। बिया जो उसके मरी ट्रिप के दौरान रवैये पर काफी परेशान थी, अब बोले बिना न रह सकी। इसकी बात पर यासिर नवाज ने गासान की तरफ देखा, जो मुस्कुरा तो भी रहा था, मगर इसकी मुस्कुराहट के पीछे छुपा फीकापन इनकी निगाहों से ओझल न सका। मेरा बेटा बहुत अच्छा है बिया, बस उसे समझना मुश्किल है। खैर ये बताओ कि पाकिस्तान का ट्रिप कैसा रहा तुम्हारा। उन्होंने बात का रुख बदल दिया। अच्छा रहा, मामू लोगों के पास तो पहले भी जाकर रह चुकी हूँ। इस दफा लाहौर जाना अच्छा लगा। सबसे ज्यादा मुझे हातमा भाभी बहुत अच्छी लगी है। बहुत प्यारी और इनोसेंट। काशान भाई बहुत लगी है, मगर उन्होंने अपनी कमअक्ली से उनका नाराज कर दिया। वे अपने ध्यान में बता रही थी, मगर इसकी बातों पर खाजान गहरे इस्तराब में मुब्तला हुआ था। वो बेख्तियार उठ खड़ा हुआ। यासिर नवाज और हानि ने एक साथ उसे देखा था। शायद इसका रद्दमल जानना चाह रहे थे। हानि तो मुसलसल दुआ गो थी कि हातमा भाभी ही इसकी भाभी रहे। मुझे कैफे जाना है, इतने माह से सब आपकी इस ब्याह पर छोड़ा हुआ था, जो खुद भी 10 दिनों से छुट्टियां मना रही है। वो हल्के फुल्के लहजे में बोला। हाँ तो क्या मुझे एंजॉय करने का हक नहीं था। वैसे भी नेक्स्ट माह मुझे और छुट्टियां चाहिए, क्योंकि मुझे काशान भाई की आज सुबह ही कॉल आई थी कि मैं इनकी शादी में जाने के लिए तैयारी शुरू कर दूं, क्योंकि हमारा आंटी मुझे सबसे मुतारिफ करवाना चाहती हैं। वो बहुत पुरजोश लहजे में बता रही थी, ये जाने बिना कि इसकी बातें खाजान को किस कदर नागवार गुजर रही थी। वो लभीचे कमरे से ही निकल गया। हानि ने चौंक कर यासिर नवाज को देखा, जो खुद ही सारे मामले से अनजान थे। क्या शादी हो रही है हातमा और काशान की। उन्होंने ब्याह से पूछा। जी अंकल, इनकी कुछ नाराजगी थी जो दूर हो चुकी है और अगले माह इनकी शादी है। आप अभी आपकी अभी थोड़ी देर पहले हमारा आंटी से बात हो तो रही थी। क्या उन्होंने नहीं बताया। बिया ने पूछा। हाँ बात तो हुई है, मगर वहां आने के लिए एयरपोर्ट से निकल चुकी थी, इसलिए ज्यादा बात नहीं हुई। अब इसने यहाँ आना है तो फिर तफसीली बात होगी। अच्छा, आप कब से बातें हो रही हैं। हानि जाओ मिसेस बुराक से बोलो कि बिया के लिए कुछ लेकर आए। वो तफसीली बात करते हानि से मुखातिब हुए, जो जल्दी से उठी थी। आप आराम करें, हम किचन में जाकर ही कुछ खा लेंगे, और मुझे भी अब कैफे चले जाना चाहिए। साहिब बहादुर गुस्सा करेंगे बोलते हुए कहती हानि के साथ बाहर चलेगी। क्या गाजन हाथ में को तलाक दे आया है, इसलिए इतना डिस्टर्ब है। एक नई सोच इनके दिमाग पर हावी हुई थी। फिर वो हमारा बेगम का इंतजार करने लगे, जिनसे वो सारी सूरत हाल जान पाती, क्योंकि गाजान से ये जिक्र छेड़ना वो अभी मुनासिब नहीं समझ रहे थे। इनको इस बात का पता था कि गाजान जब कोई बात बताने की पोजीशन में होता था खुद ही आकर डिस्कस करता था, मगर जब नहीं करता था तो इसका मतलब था कि अभी वो कुछ बताने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पा रहा। वो अपने कमरे में गुमसुम बैठी थी जब सोहा की कॉल ने इसकी तवज्जो खींच ली। कहाँ थी तुम, मामा कॉल्स कर रही थी तुम्हें। सोहा ने इसके हेलो करते ही इस्तफसार किया। मैं किचन में लंच बना रही थी, वो मध्यम लहजे में बोली। हाँ मुझे भी लगा कि तुम कहीं बिजी होगी। ऐसे में मामा ने कहना था कि तुम आज ड्राइवर अंकल के साथ हमारे घर चली जाओ। कल शाम तक हम पहुंच जाएंगे पाकिस्तान। हमारा मुमानी लंदन चली गई है क्या। वो हमेशा की तरह एक ही सांस में सब बोल रही थी। हाँ वो चली गई है। आत्मा गहरा सांस भरती बोली। तुमने खजान भाई को कॉल नहीं की। तुम्हें करनी चाहिए थी इनसे बात, अंकल के बारे में पूछना चाहिए था। सोहा के सवाल पर वो लब काट के रह गई। इसमें इतनी हिम्मत ना थी कि वो उससे कॉल ही कर लेती, क्योंकि उसे लगता था कि कॉल करेगी तो कहीं कॉल पर ही वो उसे कता ताल्लुक का फैसला न सुना दे। इसी डर से तो उसने 2 दिन मोबाइल ही बंद रखा था। देखो हाथमा, अब तुम्हें कोई फैसला ले लेना चाहिए। अगर खाजान भाई से तुम खुलकर बात नहीं करोगी तो उनको कैसे समझ आएगी कि तुम इनको ही अब शौहर के रूप में देखना चाहती हो। बल्कि मैं तो कहती हूँ अब वक्त आ गया है, तुम सबसे खुलकर बात करो कि तुम्हें तलाक नहीं चाहिए, ताकि ये सब लोग जो अगले माह तुम्हारी शादी का सोच कर बैठे हैं, इनको समझ आए। मैंने तो मामा और बाबा से कह दिया है कि आप लोग हाथमा को इस दफा खुद फैसला करने का मौका दें। मगर मामा बस फयाज मामू की वजह से चुप हैं, क्योंकि वो काशान भाई की वजह से डिस्टर्ब है। काशान भाई तुमसे मोहब्बत करते हैं, जबकि काजान भाई ने शायद तुम्हें कभी बीवी की हैसियत से कबूल ही नहीं किया, वरना थोड़ी सी उल्फत और उनसे तो महसूस होती। तुम लोग तन्हा एक घर में रहते रहे, मगर वो फिर भी तुम्हें इस नज़र से नहीं देख सके, और ना ही तुमसे कोई ताल्लुक बनाने पर रजामंद हो, वरना काशान भाई की डिमांड पर यूं खामोश न रहते, बल्कि
मैं बाद में बात करती हूँ सोहा, वो कॉल आ रही है। भीगे लहजे में बोलती वो कॉल बंद कर गई और फिर फूट फूट कर रोती। वो इस वक्त खुद को पूरी दुनिया में तन्हा महसूस कर रही थी। उसे माँ बाप बहुत शिद्दत से याद आ रहे थे, जिनकी कमी हर बार की तरह आज बहुत ज्यादा महसूस हो रही थी। अगर वो होते तो उनसे चाहे लड़ झगड़ ही लेती, मगर वो अपनी जिंदगी को मजाक बनने हरगिज न देती। पहले तो वो हलाला ही ना करती, अगर मजबूरी में करती भी तो दूसरी शादी करके अपनी जिंदगी पुरसुकून होकर गुजार लेती। मगर अब खाजान का जिंदगी में आकर यूं जाना उसकी बर्दाश्त से बाहर था, और वो ये हरगिज नहीं कर सकती थी। उसे कुछ स्टैंड लेना था अपने लिए, वो इस बार मजबूत होकर अपना केस खुद ही लड़ना चाहती थी। फजान, मैंने आपको अपना आप सौंप दिया है, अब किसी और की गुंजाइश नहीं निकलती, ना मेरे दिल में ना मेरी जिंदगी में। आप चाहे जो भी फैसला करें, मगर मुझे अब इस रिश्ते से किसी सूरत नहीं निकलना है। इसके लिए मुझे आप समेत चाहे सबकी मुखालफत क्यों न सहनी पड़े। वो अपने आंसू साफ करती अटल फैसला कर चुकी थी। उसे काशान से खुद बात करनी थी और मोबाइल पकड़े इस पर अमल भी कर चुकी थी। अगले आधे घंटे में काशान लाउंज में इसकी यूं बुलाने पर कुछ हैरान बैठा था। जो चाय का कप इसके सामने रखती बहुत मजबूत दिखाई दे रही थी। आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है, तो उसकी वजह है। उसके सामने सोफे पर बैठते जैसे बात की तमहीद बांधने लगी। आपने मेरे साथ क्या किया और फिर इसके बाद क्या क्या हुआ, मुझे इन सब बातों में अब बिल्कुल भी नहीं पड़ना। बल्कि मुझे अब दो टोक बात करनी है, ताकि हमारे दरमियान ये रोज रोज की परेशानी खत्म हो। बल्कि हमारी वजह से हमारी पूरी फैमिली डिस्टर्ब। पिछले 6 माह से मैं मुसलसल दुख की कैफियत में जी रही हूँ कि आज क्या होगा और क्या कल क्या होने वाला है। मैं अभी सब के खौफ से आज़ाद होना चाहती हूँ, और इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपसे जो भी गलती हुई वो माजी बन चुका है, और अब मैं माजी में रहकर अपनी आने वाली जिंदगी की खुशियों को दांव पर नहीं लगा सकते। आप शायद मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, मेरी इज्जत भी करते हो, अब इन सब का बदला चाहिए मुझे। वो नपे तुले अंदाज में बोलती काशान को किसी अनजाने खौफ में मुब्तला कर गई। खुद ही कैफे की बालकनी में बैठा सड़क पर नजर जमाए किसी गहरी सोच में इस कदर डूबा हुआ था कि बिया का आना और उसके पास बैठना भी नोट नहीं कर पाया। जो बड़े ध्यान से उसे देखती आखिर को टेबल बजा गई। कहाँ गुम हो, मैं काफी देर से नोट कर रही हूँ, तुम मुसलसल एक पॉइंट की तरफ ही नजर जमा कर बैठे हो। कुछ परेशानी है तो मुझसे शेयर करो। अंकल तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, पापा बता रहे थे कि खतरे की अब कोई बात नहीं है। बिया दोस्ताना अंदाज में इसकी तवज्जो अपनी तरफ करवाने लगी। जो एक सांस हवा के सुपुर्द करता उसे देखने लगा। जो ब्लैक पैंट पर ब्लैक लॉन्ग कोट पहने, बालों को पोनी टेल में कैद की, इसकी तरफ सवाली निगाहों से देख रही थी कि वो लड़की थी जो उसकी 10 सालों से दोस्त थी। दोनों एक साथ पढ़े थे और अब एक कैफे में भी एक साथ काम कर रहे थे। फजान से जब यासिर नवाज ने बिया के बारे में पूछा था, तो उसने सोचने के लिए एक दिन का टाइम लिया था और फिर हाँ कर दी थी, क्योंकि वो हर लिहाज से अच्छी लड़की थी। फजान को लंदन जैसे माहौल में रहने के लिए अपनी फैमिली के लिए ऐसी ही लड़की चाहिए थी, जो एहसास और रिश्तों की कदर जानती हो। वो इसकी बहुत अच्छी दोस्त थी, इसलिए गाजान उसे पसंद करता था। और मोहब्बत, लंदन जैसी मसरूफ जिंदगी में मोहब्बत के बारे में सोचने का टाइम किसके पास था। और बिया ने भी अभी तक इससे मोहब्बत की डिमांड नहीं की थी, क्योंकि उसे पता था गाजान अपने जज्बात का इजहार करना पसंद नहीं करता। उसे इसका ख्याल रखने वाला अंदाज ही मोहब्बत लगता था। और अब इसकी सोच, इसका दिल, सब कुछ बदल चुका था। शेक्सपियर कितना सच कहता है कि मोहब्बत आंखों से नहीं दिल से देखती है, इसीलिए मोहब्बत के देवता को अंधा बताया गया है। इसीलिए तो हाथ में इसका आइडल न होते भी, इसकी आदत से नाला होते भी, वो उसकी मोहब्बत के शिकंजे में फंस कर रह गया था। हालांकि वो इस जज्बे से कतई बेमहरा था। इसकी जिंदगी में अगर मोहब्बत का लफ्ज मौजूद था, तो वो इसके घर वाले थे। इसकी मोहब्बत का दायरा इन्हीं लोगों तक महदूद था। मगर कभी कभी होता है ना कि किसी के ख्वाब की बेनाम सी आहट दबे पांव दर आती है, और कोई लाताल्लुक सा ताल्लुक, कोई अनजाना सा ख्याल ख्वाहिशों की दहलीज पर आकर बैठ जाता है। इसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। इसने अपने और आत्मा के ताल्लुक को अपनी बेनियाजी में लपेट दिया था। वो यही समझता था कि ऐसा करने से वो कभी इस रिश्ते की गिरफ्त में नहीं आएगा, और ना ये रिश्ता इसके पाँव में मोहब्बत की जंजीर डालकर उसे कैद कर सकता था। मगर इस नर्म नाजुक लड़की ने जो आहिस्ता आहिस्ता खुद भी बदली थी, उसे भी बदल दिया। मोहब्बतों पर बंद बांधना वाकई दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। वो कब इस लड़की का सिर हुआ, उसे खुद खबर नहीं हुई थी। शायद से आने ठीक ही कहते हैं कि निकाह के बोल में बड़ी ताकत होती है। रिश्ता जब अल्लाह को हाजिर नासिर जान कर किया जाता है, तो दिल में वसत भी खुद ब खुद पैदा हो जाती है, और ऐसा ही इसके साथ हुआ। वो बचकर रहने की पूरी कोशिश करता भी इस मोहब्बत से अपना दामन नहीं बचा सका था, और इस रात इससे एक मजबूत ताल्लुक कायम कर गया, जिस पर उसे कतई कोई पछतावा न था। अगर कुछ था तो वो इस रिश्ते को सबके सामने कबूल करने की हिचकिचाहट थी, जिस रिश्ते को उसने सबके कहने पर फकत कुछ माह के लिए कबूल किया था। कहाँ खो जाते हो बार बार तुम, क्या बात है? खजान बिया के बोलने पर वो सर झटक गया। तुमसे कुछ बात करनी है, और मुझे उम्मीद है तुम अच्छी दोस्त होने का सबूत दोगे और मुझे समझने की कोशिश करोगे। वो भी दो टोक फैसला कर लेना चाहता। हाँ बोलो, क्या बात है? बिया पूरी तरह मुतवज्जो हुई। तुम जानती हो काशान और हातमा के दरमियान कुछ मसला हुआ था। इसने तमहीद बांधी। हाँ, ये बात जानती हूँ, बल्कि अब तो शायद सब ठीक होने वाला है, बिया बोली। मगर तुम पूरा सच नहीं जानते। असल में काशान ने हातमा को तब तलाक दे दी थी। क्या? बिया यकीन थी, जिस पर काशान ने उसे तफसील से बताया। ओ माय गॉड! इसलिए हातमा भाभी इसका नाराज और अपसेट थी। बहुत बुरा किया काशान भाई ने।
पिया नए सिरे से गम में मुब्तला हुई, जबकि ग़ज़ान की अगली बात उसे शशदर ही कर गई। और मुझे पाकिस्तान मामा ने बुलाया था क्योंकि काशान हातमा से दोबारा शादी करना चाहता था, जिसके लिए हलाला ज़रूरी था। और इसके लिए इसने मेरा इंतखाब किया था, मतलब कि हातमा मेरे निकाह में है। पिया के लिए ये बात किसी झटके से कम न थी। वो कितनी देर साकित इस बात का मफ़हूम समझने में लगी रही थी, जो बहुत आसानी से बात करता, इसके तासुरात से नज़रें चुराता दूसरी तरफ देखने लगा था। तो अब पिया को इस बात से ज़्यादा अगली बात की फ़िक्र थी कि वो अब क्या करना चाहता है, क्योंकि उसके ज़हन में लाहौर और मरी में गुज़रे बहुत सारे वाक़यात उजागर हुए थे, जिनसे वो ग़ज़ान की नाराज़गी और गुस्सा अब सही मानों में समझ पाई थी। मैंने वो ताल्लुक छोड़ने के लिए ही बनाया था, और इस ताल्लुक से ऐसे लाताल्लुक रहा जैसे मेरा इससे कोई वास्ता नहीं। मगर मुझे नहीं पता था कि लाताल्लुक रहते हुए मैं इस कदर इन्वॉल्व हो जाऊंगा कि अब लाताल्लुक होना मेरे बस में नहीं रहा। वो हारे हुए लहजे में बोलता, बिया को जामी थी तो कर चुका। वो शशदुर से इसकी तरफ बेयकीनी से देखती, जैसे इस हकीकत को कबूल करने की कोशिश में थी, जो उसके लिए किसी शौक से कम ना थी। आई एम सॉरी, मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का हरगिज़ नहीं था, मगर मैं इससे ज़्यादा तुम्हें लायम रख कर तकलीफ नहीं देना चाहता था। तुम जानती हो मुझे 10 साल से मैं हर रिश्ते में बहुत फेयर रही हूँ, तुम मेरी हर आदत हर बात से वाकिफ हो। बस ये बात मैंने तुमसे छुपाई थी क्योंकि मेरे नज़दीक ये रिश्ता एक कागज़ की हैसियत से ज़्यादा ज़रूरी नहीं था। मगर पता नहीं कब कैसे मैं फिर से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैं चाह कर भी अब पहले वाला खजान नहीं बन सकूंगा। पिया के सीने में इसके अल्फाज किस तरह छुरियां चला रहे थे, वो इस सब बातों को जानकर भी अनजान बना, सब कुछ कहता अब खड़ा हुआ था। इसके अंदर और हिम्मत नहीं थी कि वो बिया को यूं अपने सामने टूटता हुआ देखे। वो अपनी दोस्ती का भरम रखता वहां से निकलता चला गया। उसे यकीन था कि कुछ दिन न सही, कुछ माह बाद या साल बाद शायद वो उसे माफ कर दे, जब उसे वो हमसफर मिलेगा जो सिर्फ और सिर्फ इसका होगा। वे इसके जाने के बाद अपनी आंखों से बहते आंसू पर काबू न पा सकी, और इससे मोहब्बत करती थी, इसके साथ शादी के ख्वाब देखती थी, और ये ख्वाब इस तरह टूटेंगे उसे यकीन नहीं आ रहा था। वो चाहकर भी क़ाज़ान को बुरा भला नहीं कह सकी, क्योंकि वो जानती थी कि क़ाज़ान कैसा है। वो आम लड़कों की तरह हर लड़की पर मरने वाला या नफ्स परस्त नहीं था, वो रिश्तों की कदर करने वाला था। अगर इस मोड़ पर आकर वो बिया को छोड़ने पर मजबूर हुआ था, तो इसका मतलब कि अपने दिल के हाथों शिकस्त खा चुका था। और जब दिल किसी जगह पर मात देते तो इंसान चाहकर भी वहां से कामयाबी से पलट नहीं सकता। आप मुझे अपने भाई की जिंदगी में रहने दे प्लीज, वही हुआ था जिस बात का काशान को डर था। वो जानता था कि हाथ में कुछ ऐसा मांगने वाली है जो देना इसके लिए शायद बहुत मुश्किल था। वो पत्थर बना उसे सुनने लगा। मैंने आपके भाई को अपने शौहर के रूप में कबूल कर लिया। अब मेरे लिए वापस पलटना नामुमकिन है। आप लोग चाहे जबरदस्ती गाजान से मुझे अलग कर भी दें, तो मैं कभी भी आपकी जिंदगी में वापस नहीं आ सकूंगी। मुझे गाजान से मोहब्बत है, और ये बात आपसे बेहतर कौन जानता है कि जिनसे मोहब्बत हो इनको छोड़ना किस कदर तकलीफ दे होता है। और अगर हालात ऐसे पैदा हो जाए कि छोड़ना भी पड़ जाए, फिर किसी को और को अपनी जिंदगी में बर्दाश्त करना भी मुश्किल हो जाता है। मैं आपके निकाह में 6 माह रही, मगर मुझे आपसे वो लगाव कभी महसूस नहीं हो जो मैं आपके भाई के लिए महसूस करती हूँ। और ये बातें मुझे आपसे करनी नहीं चाहिए, मगर मैं सिर्फ इस वजह से कर रही हूँ कि आप ये ना समझे कि मैंने आपको माफ नहीं किया। इसलिए, बल्कि हकीकत यह है कि अब मैं मर तो सकती हूँ, मगर दोबारा आपकी ज़िंदगी में आना मेरे लिए हराम है। इसका लहजा बहुत अटल और मजबूत था। वो उसके सामने हकीकत बयान करती किसी बात से हिचकिचाई ना थी। काशान जब से सुर्ख चेहरा और लब भींचे बेख्तियार उठ खड़ा हो। वो गुजरे इन 3 माह में बहुत से वाकयात पर ठटका था। इसके दिल में इन दोनों को लेकर बहुत सारे वसवसे पैदा होते रहे थे। ये दोनों तन्हा एक साथ रहते हैं, इनके दरमियान मौजूद ताल्लुक दोनों को अपनी तरफ खींचेगा, और यही डर इसका आज हकीकत का रूप लिए पूरे कद के साथ इसके सामने था कि वो तो झुंझला झुटला पा रहा था, और ना ही गुस्सा करके इस फ्रस्ट्रेशन से निकाल पा रहा था। मैं ये सब कुछ बहुत दफ़ा आपको बावर करवा चुकी हूँ। मरी में भी मैंने अपनी हर बात से आपको आगाह किया था कि मैं फैसला कर चुकी हूँ। बेशक मेरे इस फैसले में ग़ज़ान की मर्ज़ी शामिल नहीं है। वो आपकी मम्मा से किए गए वादे की पासदारी के लिए मुझे छोड़ने पर राज़ी भी हो सकते हैं। शायद वो मुझसे मोहब्बत भी ना करते हों। उन्होंने हमेशा मुझे यही बावर करवाने की कोशिश की है कि हमारा ताल्लुक आर्ज़ी है। मगर वो मैं हूँ जिसने इस आर्ज़ी ताल्लुक को हकीकत का रूप देने की कोशिश हर तरीके से। मैंने ग़ज़ान को इस बात का सबूत दिया कि मैं इनको अपना शौहर मान चुकी हूँ, इसलिए मैं हर हद तक गई हूँ। वो अपने लफ्ज़ों से ही काशान को सज़ा सुना रही थी। वो हारे हुए जुआरी की तरह यूँ साकित खड़ा था, जैसे वो इस बिसात की हर बाजी हार चुका था। और सच भी यही था कि इसका दिमाग इस कदर माफ हो रहा था कि वो समझ नहीं पा रहा था कि इस सब में खुद को लान तान करे, ख़ज़ान को कोसे या हातमा पर चीखो पुकार करे, जो उसे वो सज़ा दे रही थी जिसे कबूल ना करने के लिए तो उसने हलाला करवाने के लिए सबको किस किस तरह से राज़ी किया था। आज यही हलाला उसे बता गया था कि हर गुनाह की माफ़ी नहीं होती। वो घर आए तो उसे हमारा बेगम की आमद का मालूम हुआ। वो इस वक्त इनसे मिलने से गुरेज करता अपने कमरे में चला आया। वो भी किसी सवाल और जवाब की पोजीशन में ना था। इस सबसे पहले काशान से बात करनी थी, मगर इसका नंबर पिछले 2 घंटों से ऑफ आ रहा था। फजान सर था, हमें वही बेड पर टिक गया। तभी हानि इसके लिए यासिर नवाज का पैगाम लाई, जो उसे अपने कमरे में बुला रहे थे। फजान गहरा सांस हवा के सुपुर्द करता इनके कमरे में चला है, जहाँ हमारा बेगम पहले से बरा जमान थी। वो इनसे
प्यार लेने को झुका, उन्होंने इसकी पेशानी चूमी थी। शुक्र है यासिर की तबीयत अब बहुत बेहतर है और ये सफर भी कर सकता है। अब काशान की शादी में इनकी शिरकत भी बगैर किसी अवसर के जरूरी है, और मैं ये चाहती हूँ कि काशान के वलीमे के रोज पिया और खजान की मंगनी भी करें, ताकि पाकिस्तान में सब शरीक हो सके। खजान की शादी तो यही होगी ना? उन्होंने हल्की से मुस्कुराते लहजे में बोलते हुए दोनों की ताईदी निगाह से देख, मेरी और बिया की मंगनी पाकिस्तान में हो या यहाँ, ये आपका मसला नहीं है मामा। आपका मसला सिर्फ आपके बेटे काशान की शादी है, जिसके लिए आपको इतनी तमहीद मानने की जरूरत नहीं है। खाजान ने इनकी बात पर बेख्तियार पहलू बदला था। खाजान, इसके तुर्क लहजे पर यासिर नवाज ने सर्जिश की थी, क्योंकि हमारा बेगम का चेहरा फीका पड़ा था। तुम आखिर मुझे माफ क्यों नहीं कर देते? तुम भी मेरे बेटे हो, मगर मैं तुम्हारे मामले में लापरवाही इसलिए बरत जाती हूँ कि मुझसे ज्यादा तुम्हें यासिर और हिना ने प्यार दिया है। वरना मुझे तुम्हारी फिक्र इतनी है जितनी बिस्मा और काशान की है। उन्होंने हर बार की तरह इसकी बदगुमानी को दूर करना चाहा था। अगर आपको इतनी ही मेरी फिक्र होती तो आप कभी भी मेरी जिंदगी को अपने बच्चों की खुशियों के लिए इस्तेमाल ना करते। मुझे वो सब कभी भी करने के लिए ना कहती जो मेरे लिए मुश्किल का बायस बनता। वो शिकवा की भी ना रह सका। उसे रह रहकर अपने अमल पर पछतावा हो रहा था। किसने क्यों हलाला के लिए हामी भरी? इतनी ठीक ठाक जिंदगी चल रही थी इसकी, वो इन सब उलझनों में पड़कर परेशान हो चुका था। तुमने एक छोटा सा काम, छोटा सा, वो तलखी से हंसा, आपके नजदीक इतना छोटा सा काम मेरे लिए मेरी पूरी जिंदगी का मसला बन गया। मगर आपको इस सबसे क्या? एनीवेज, मुझे अब चलना है, आप गपशप करें। वोट खड़ा हुआ। मुझे कल पाकिस्तान जाना है खजान, इसलिए तुम इन कागजात पर साइन कर दो। अमारा बेगम इसके लबो लहजे पर अंदर ही अंदर परेशान और हैरान होती बज़ाहिर नॉर्मल अंदाज में बोलती हैं, अपने बैग से कुछ पेपर्स निकाल कर यासिर नवाज के सामने टेबल पर रखे, जिन्होंने चौंक कर इन पेपर्स को और फिर खाजान को देखा, जो लब सख्ती से भीज गया था। वो जब से सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ एक काटदार नजर अमारा बेगम पर डाल के, जो इस वक्त एक माँ का मुकम्मल रूप धारी अपने बेटे की खुशियों का ख्याल करती, दूसरे के एहसासात और जज्बात से बेबह रहती। क्या हाथ राजी है तलाक? यासिर नवाज के सवाल पर खाजान की निगाहें भी उन पर टिकी थी, जो धीमे से मुस्कुराई। हातमा को क्या एतराज हो सकता है भला? वो हलाला के लिए ही तो खाजान से निकाह पर राजी हुई थी। उसे काशान से वक्ती नाराजगी थी, अब वो भी खत्म हो चुकी। खाजान के सामने ही हातमा से डाइवोर्स पेपर की बात हुई थी। वो राजी थी, मैं इसलिए पेपर साथ लेकर आई हूँ कि खाजान को पाकिस्तान आने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि पहले ही इसका 3 माह से काफी हज हो चुका है। अब काशान की शादी पर ही सबने आना है। इनकी बात पर खाजान को हातमा किस दिन की पुरशिकवा निगाहें याद आई, तो वह तंजिया मुस्कुरा दिया। आप तो पहले से ही सब प्लान कर कर आई हैं, मगर आप मुझसे पूछना शायद भूल गई हैं कि मुझे ये तलाक मंजूर भी है कि नहीं। वो पुरसुकून लहजे में बोलता इनकी समातों पर धमाका ही तो कर गया था। वो शशद्दुर से खाजान को देखने लगी, जो यासिर नवाज की तरफ देख रहा था। शायद इनसे अपने इस फैसले पर राय लेना चाहता था, जो कि गहरा सांस भरते अपना सर इस बात में हिलाकर उसे इस बात की तसल्ली दे गए कि वो उसके साथ थे। ये क्या कह रहे हो तुम खाजान? ये हलाला तुमने अपने भाई की खुशी के लिए किया था? और वो हवास बाख्ता हो गई थी। भाई की नहीं, अपनी खुशी के लिए किया था, मगर मुझे अब अपनी बीवी को तलाक नहीं देनी है। आपकी खुशी के लिए किया था, मगर मुझे अब अपनी बीवी को तलाक नहीं देनी। वो दो टोक लहजे में बोलता इनको हकीकतन परेशान कर गया। तुम्हारी नीयत बदली है, तुम मुझसे बदला लेने के लिए सब करे। वो तैश में बोली, किस बात का बदला लूंगा मैं आपसे? मैं पुरसुकून हूँ कि मैं बाबा और ममा का बेटा हूँ। अगर आपने मुझे पैदा किया है तो उसका बदला मैं शायद ही चुका सकूं। जहां तक बात है आपकी कि मेरी नीयत बदल गई, तो उसका जवाब मैं हरगिज नहीं दूंगा, क्योंकि वो मेरी बीवी है और अपनी बीवी को अपने पास रखने का मुझे पूरा अख्तियार है। मैं ये गवारा नहीं कर सकता कि मैं अपनी बीवी को अपने भाई के लिए छोड़ दूं। वो भाई जिसने बिना सोचे समझे अपनी बीवी को किसी और के साथ देखकर ही छोड़ दिया था। इसलिए आप मेहरबानी फरमाकर मुझे इतना मजबूर मत कीजिएगा कि मैं आपके साथ बदतमीजी करूं या कुछ ऐसा करूं कि हम दोनों सारी जिंदगी के लिए एक दूसरे की शक्लें देखने से भी जाएं। अब मुझे इजाजत दें, मुझे पाकिस्तान जाना है। मैं अपनी जात का अहम हिस्सा वहां छोड़ आई। वो इनको वहीं हद तक छोड़ कर निकल गया। वो साकित सी बैठी इसकी बातों पर गौर करती रह गई। आज सोहा लोग आ चुके थे, मगर वो उनके घर नहीं गई थी। इसने कॉल पर मना कर दिया था कि वो जब तक खाजान के निकाह में है यही रहेगी, क्योंकि उसे अब अपनी जगह इतनी आसानी से नहीं छोड़नी थी। वो खाजान से अब दो टोक बात करना चाहती थी, बल्कि सबसे पहले इसकी मर्जी जानना चाहती थी कि वो क्या चाहता है। उसे किस चीज की हिचकिचाहट थी जो उसे इससे दूर रखना चाहती थी। सोहर से मिलने आई थी, हातमा ने हर बात इससे डिस्कस की थी। सिर्फ मरी में गुजारी गई वो आखिरी रात गोल कर गई, जो उसके ख्याल में दोनों मियाँ बीवी का मामला था। उफ लड़की, तुम भी ना बहुत पागल हो। इतनी रातें अकेली भाई के साथ रही हो, इनका कमरा शेयर करती रही, फिर किसी मूवी की तरह इनके लिए दूध में कुछ मिलाकर इनको पिला देती, और अगली सुबह ही शोर मचा देती कि उन्होंने तुम्हें प्रेग्नेंट कर दिया है। सोहा के ऊँट पटाख मशरूब पर वो कह कहा लगा गई, प्रेग्नेंट होना इतना आसान होता है क्या? वो सुर्ख चेहरा लिए मध्यम मुस्कुराहट से बोली, जिस पर सोहा ने आंखें टपटपाते हुए उसे सर से पांव तक क्यों घोरा था कि वो खजल सी होकर हंस दी। कहीं सचमुच में ऐसा सीन तो नहीं कर लिया लड़की, जो इतनी लाल पीली हो रही हो? सोहा के सवाल पर वो गड़बड़ा कर उठी। पागल मत बनो। अच्छा ये बताओ कि तुम क्या खाओगे? पागल तो तुम दोनों मियाँ बीवी हम सबको बनाने की कोशिश कर रहे हो। एनीवेज, ये खुशी किस वजह से है? फोन पर तो टस्से बाहर जा रहे थे। सोहा को न जाने क्यों उस पर शक हुआ।
ये तुम्हारे आने की खुशी है। वैसे मुझे अब अपने अल्लाह पर पूरा यकीन है कि वो मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगा। जहाँ तक बात है ख़ाज़ान की, तो इनका नाम तो हमेशा मेरे नाम के साथ जुड़ा रहेगा, चाहे वो खुद मेरे साथ रहने पर राज़ी भी ना हो। आत्मा कोई फ़ैसला ले चुकी थी, इसलिए पुरसुकून थी। सोहा दिल ही दिल में इसके लिए दुआ गो थे। वो बेड पर चित लेटा फातिमा के बारे में ही सोच रहा था। जो बातें कल हातिमा ने इसके साथ की थी, वो उसे खामोश करने के लिए काफ़ी थे। इसने खुले अंदाज में इस पर अपना फैसला वाजिया कर दिया था कि वो गाज़ान से मोहब्बत करती, इसके साथ रहना चाहती, और काशान को भी ये फैसला करना था कि क्या वो ये गवारा कर सकता था कि इसकी बीवी के दिल में इसके भाई की मोहब्बत मौजूद हो। ये बात वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसके जहन में बार बार वो मनासिर घूमने लगे जब जब हातिमा और गाज़ान एक दूसरे के करीब रहे थे। फिर मरी में इनका एक कमरा शेयर करना, ये बात कितने दिन ही इसके जहन पर सवार रही थी। बेशक वो हातिमा से मोहब्बत करता था, उसे हासिल करना चाहता था, मगर हातिमा के दिल में अब खाजान की मोहब्बत पनपते देखकर वो हिचकिचाहट का शिकार हो गया था। अगर ये बात उसे हातिमा के बजाय खाजान ने कही होती, तो वो शोर डालता, चीखता, चिल्लाता, सबको इकट्ठा कर लेता कि खाजान ने धोखा दिया। मगर हातिमा की बात पर वो सवाए तड़पने के और कुछ नहीं कर सका था। दरवाजे पर दस्तक के साथ कोई कमरे में दाखिल हुआ था। काशान उठकर बैठा, मगर सामने खाजान को देखकर चौंका था। इसके मुताबिक खाजान की पाकिस्तान में मौजूदगी बनती नहीं थी, क्योंकि इसने डाइवोर्स पेपर्स अमारा बेगम के हाथ ही भिजवाए थे, ताकि खाजान अब दोबारा हातिमा की जिंदगी में ना आए। कैसे हो तुम? यकीनन मेरे यहाँ आने की तवक्को नहीं कर रहे होंगे। खाजा ने बिना हेलो कहे बात शुरू की थी। काशान ने एक नज़र इस पर डाली जो सफ़ेद शर्ट के ऊपर ब्लू जैकेट कोट पहने, कदरे बेतरतीब बाल, हल्की सी शेव और सुर्ख सफ़ेद रंग के साथ इसके सामने था। बेशक वो बला का हैंडसम था, इसकी पर्सनालिटी में ऐसा तासुर ज़रूर था कि अगला बंदा एक बार देखकर बार बार देखने की ख्वाहिश ज़रूर करता था। मामा नहीं आई तुम्हारे साथ? काशान ने अपने दिमाग में आने वाले हर ख्याल को झटक कर पूछा। हाँ, साथ आई हैं, वो नीचे है। असल में दोनों बेटों के दरमियान से निकलने का फैसला कर चुकी है। इनके ख्याल में अब हमें खुद बिना इनको शामिल किए फैसला करना चाहिए कि हमें रिश्तों को और डिसहार्ट नहीं करना चाहिए। आजान तहम्मुल से बोला। क्या कहना चाहते हो तुम? खुलकर को हमें जानते हुए भी सब तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। काशान भी अब खुद को सबके लिए तैयार कर चुका था। ख्वाजा ने गहरा सांस भरते हुए उसकी तरफ देखा। क्या तुम मुझे इस बात की गारंटी दोगे कि कभी जिंदगी में तुम्हारे जहन में ये बात नहीं आएगी कि हातमा 3 माह मेरे साथ रही है, एक घर में और शायद एक कमरे में, हमारे दरमियान मियाँ बीवी वाला रिलेशन बना के नहीं? इस बात का जवाब भी तुम खुद ही तलाश करोगे। ख्वाजान दो टूक बोलता बड़ी गहरी बात कर गया था, बल्कि इसकी जज्बाती और शक्की तबीयत पर चोट करते हुए सवालिया निगाहों से देखने लगा, जो उसके सवाल पर लब भींच कर चुपते हुए लहजे में बोला। जब इस बात का इकरार दोनों तरफ से हो जाए, तो फिर कैसे मेरे जहन में ये बात ना आए? तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हो, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, तो फिर मेरे प्यास क्या लेने आए हो? मुझे क्यों अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हो कि इस सब में मेरा ही कसूर था? मैं ना शक करता, ना उसे तलाक देता, और ना तुम्हारे साथ इसका हलाला करवाने पर जिद करता। मगर मुझे क्या पता था कि जिस भाई पर भरोसा करके मैंने उसे अपनी बीवी सौंपी थी, इसकी अपनी ही नीयत बदल जाएगी। यू नो व्हाट खजान, तुमने धोखा दिया है। कैसे तुमने हातमा को अपनी तरफ मुतवज्जा किया, ये मैं भी खूब जानता हूँ। वो तुम ही थे ना जिसने हातिमा को इस घर से वहां रहने पर उकसाया था। फिर वहां जाकर तुम लोग एक साथ रहे, और जो कुछ मरी में हुआ इससे भी ना वाकिफ नहीं हो। तुमने इसके साथ वहां भी कमरा शेयर किया। वो एक नाजुक और हसास लड़की है जो मुझसे नाराज थी, कैसे ना तुम्हारी तरफ रागिब होती। और फिर तुमने उसे सबके सामने खड़ा किया कि बोले कि उसे तुम्हारे साथ ही रहना है। काशान चबा चबा कर बोलता, काजान को गुस्सा दिला के इसके माथे पर तेवरी साफ देखी जा सकती थी, मगर वो कमाल जब्त का मुजाहरा करता इसकी हर कसेली बात हजम कर गया था। और अब तुम मुझसे ये कहने आए हो कि तुम उसे छोड़ नहीं सकते क्योंकि तुम्हें भी इससे मोहब्बत हो गई। तो मैं यही कहूंगा कि ऐसा करने से पहले तुम्हें शर्फ से डूब मरना चाहिए था। काजान, तुमने अपने भाई को धोखा दिया है, जिसने सारे जहान में से सिर्फ तुम्हें चुना था कि तुम हातमा को मेरी जिंदगी में वापस ला सको, मगर तुम खुद ही उसे अपनी जिंदगी से निकालने का जरिया बन गए। कशान का लहजा टूटा हुआ था तो अंदाज शदीद पर हमी लिए हुआ था। काजान यहाँ आकर मुठियां भींच कर सर झुका गया। यही तो वो जगह थी जहां वो खुद को कसूरवार करानता था। यही तो हिचकिचाहट थी जो हाथ में से दूर रखी हुई थी। मैं मानता हूँ कि यहाँ मेरा कसूर निकलता है, मगर मैंने सब जानबूझकर नहीं किया, और ना मैंने हातमा को अपनी जात से कुछ ऐसा एहसास दिलाया था कि वो मेरे बारे में ऐसा सोचे। मुझे नहीं पता कब कैसे ये सब हुआ, मगर मेरे लिए अब उसे छोड़ना मुमकिन नहीं रहा। इसके बदले तुम मुझे चाहे सारी जिंदगी के लिए कता ताल्लुक कर लो या कोई और सजा, मगर ये सच है कि मैं हातमा को किसी सूरत तलाक नहीं दे सकता। न जाने तुमने मोहब्बत के बावजूद कैसे उसे किसी और के साथ देखकर तलाक दे दी थी। मैं तो ये जानते हुए भी कि वो 6 माह तुम्हारे निकाह में रही है, तुम इससे बात मोहब्बत करते हो। हमारा रिश्ता सिर्फ हलाला की शराइत पर तय हुआ था। फिर भी मैं उसे छोड़ने का सोचूं भी तो मेरी जान जाती है, और मैं इस मामले में बेबस हूँ। मैं तुम्हारा और बिया का कसूरवार हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। खजान ने इसके पास आकर मलतजी अंदाज में कहा था, और फिर एक नजर इसके रुख मोड़े चेहरे पर डालता वहां से कि आफंदी हाउस से ही निकल गया था। दरवाजे के पास सब सुनती हमारा बेगम बेबसी से लब काट के रह गई। वो न जाने
वो ना जाने वाले बेटे को उसकी खुशी पर मुबारकबाद दे सकी, न अंदर बैठे गमज़दा बेटे को दिलासा दे सकी। सोहा आज रात इसके पास ही रुकी थी। आज सारा दिन सोहा के साथ बिताकर वो बहुत खुश थी। उसे चाय की तलब महसूस हुई तो उठ खड़ी हुई। टाइम देखा, रात के 11 बज रहे थे। वो सोई हुई सोहा पर एक नज़र डालती किचन में चली आई। चाय के लिए पानी चढ़ाकर फ्रिज की तरफ पलटी थी, तभी उसे बाहर खटका सा महसूस हुआ। वो चौंक कर मुड़ी। डरते डरते कदम लाउंज की तरफ बढ़ाए, जहां हॉल के दरवाजे से दाखिल होते अजान को देखकर वो ठटकी थी, जो उसे देखता की तरफ आया था। हाय, तुम यकीनन चाय बना रही होगी अपने लिए। ऐसा करो, एक कप कॉफी का लेकर मेरे कमरे में आ जाओ। वो हशाश बशाश लहजे में बोलता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। हाथ में हैरस के रवैये को नोट करती किचन में चली आई। आज शायद फैसले का दिन है। वो इतना तो जान गई थी कि खजान की आमद बिला वजह नहीं थी। वो कोई ना कोई फैसला करके ही आया था। कॉफी का मग लिए वो उसके कमरे में चली आई, जो फोन पर कॉल पर मसरूफ था। जी बाबा, अभी घर पहुंचा हूँ, इससे बात हो गई है। आप फिक्र न करें, कल की वापसी की फ्लाइट है मेरी। जी जी बिल्कुल, ओके बाय। दूसरी तरफ यासिर नवाजते हाथ में उसके जाने का सुनकर अंदर तक काम कर रह गए थे। वो कॉफी टेबल पर जोर से पटक कर उसकी तरफ मुड़ी, जो उसकी तरफ ही पलटा था। आप फैसला सुनाने के लिए आए हैं ना? तो मुझे आपका फैसला कबूल नहीं है। आपको कल वापस जाना है, शौक से जाइए। बिया से शादी करनी है वो कर ले, मगर मुझे हरगिज तलाक नहीं चाहिए। और अगर आपने मुझे तलाक दी तो मैं आपके सामने अपनी जान दे दूंगी, फिर रोते रहेगा सारी जिंदगी। वो नाक पर गुस्सा धरे बरहमी से बोलती उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। वो महफूज निगाहों से इसके तासुरात देखने लगा, जैसे उसकी मुस्कुराहट जलाकर राह कर गई। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे होने ना होने से, क्योंकि आप बहुत कठोर और पत्थर दिल है। मगर मेरी बात कान खोल कर सुन ले। मुझे आपके साथ नहीं रहना, मगर मुझे आपका नाम अपने नाम के साथ रखना है, और ये बात मैं आपके भाई पर भी वाजे कर चुकी हूँ। वो उंगली उठाकर उसे वार्निंग दे रही थी। ये किसने कहा कि मुझे तुम्हारे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता? फजानू से तंग नहीं करना चाहता था, इसलिए इसका हाथ पकड़ते हुए धीमे लहजे में इस्तफसार करने लगा। वो उसकी बात पर कुछ हैरान हुई थी। आपको फर्क पड़ता होता तो आप मुझे इग्नोर ना करते। और दूसरा, आपने पिछले एक हफ्ते से मुझसे राब्ता नहीं किया, जैसे कोई मेरा वजूद ही ना हो। इसके रूहान से लहजे पर वो गहरी सांस भरकर बोला, तुमसे राब्ता किया था, मगर तुम्हारा नंबर बंद था। इसके बाद मेरा इरादा तुमसे फेस टू फेस बात करने का था, इसलिए जहां तक बात इग्नोर करने की तो उसकी वजह थी, वो क्या थी तुम खुद भी जानती हो। खजान उसीलिए सोफे पर बैठ के हाथ मैंने इसके हाथ में मुकीद अपने हाथ को देखा, फिर जांचती निगाहों से खजान को देखा कि वो क्या फैसला कर चुका था। आप क्या चाहते हैं? वो इसकी तरफ सवाली निगाहों से देखने लगी, जिसने अपनी खूबसूरत नजरें इसके चेहरे पर फोकस की थी, और फिर झुकते हुए इसकी पेशानी पर लब रखता उसे तशद्दुद कर गया। मेरा फैसला तुम्हें इसी रात ही समझ जाना चाहिए था, जिस रात मैंने तुम्हारे और अपने दरमियान कायम सारी हदूदों को मिटा दिया था, और तुम पर सारी जिंदगी के लिए अपने नाम की महर लगा दी। खजान के मुंह से निकलते अल्फाज थे कि कोई अमृत में डूबे फूल, जो उसका तन मन महका गए थे। वो बेयकीनी सी कैफियत लिए खजान को यकटक देखती रह गई, जो उसे दुनिया जहान की दौलत अपने हाथों से ही थमा गया था। आप, ये क्या मतलब? वो बेरब्त सी बोलती, शायद अभी तक बेयकीन थी, या शायद इस खूबसूरत हकीकत को बार बार सुनना चाहती थी। मिसेस खासान, बात तो वही की है जो आपकी मनपसंद है, फिर आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा है? मुझे तुम्हारे साथ ही जिंदगी गुजारनी है, और कल हम दोनों ही लंदन जा रहे हैं। अगर तुम जरा होश में होती तो अंदाजा लगाती कि मैं इस दिन अपने जरूरी सामान के साथ तुम्हारा आईडी कार्ड और पासपोर्ट भी ले गया था, जो मरी से वापसी के दौरान मेरे पास ही मौजूद था। आपकी बार खजान ने वजाहत कर दी थी। इसके दिलो जान में एक सुकून सा उतर आया। वो शुक्र का सांस भरती नम आंखों से मुस्कुराती। आपने बहुत रुलाया मुझे। इस 7 दिन एक सूली पर लटक कर गुजारे हैं मैंने, पल पल इस खौफ की तलवार मेरे सर पर लटकती रही कि आप मुझे तलाक न दे दें। मैंने फ़ोन बंद किया कि आप मुझे कॉल पर ही वो अल्फाज न बोलते जो मेरे लिए मौत का परवाना थे। आपने जिस तरह मरी से वापसी पर मुझे इग्नोर किया, यहाँ से जाकर किया, मुझे लगा अब आप कभी वापस नहीं आएंगे। आपने बहुत परेशान किया है मुझे। इसने अपनी भीगी पलकें उठाई। खजान ने देखा, इनकी आंखों में बहुत सारे शिकवे थे। खजान की आंखों को बारी बारी चूमता, जैसे सारे शिकवे अपने प्यार से बहा ले गया। तुम्हें इग्नोर नहीं किया था, बल्कि खुद को वक्त दे रहा था कि कैसे सबको इस फैसले से आगाह करना है। मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था सबको, खास करके काशान से ये कहना कि मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकता हूँ, जिसने हलाला के लिए मुझे मजबूर किया था। मैं हिचकिचाहट का शिकार हो चुका था कि सब क्या सोचेंगे। मैंने काशान से क्या है तोड़ा है, मैंने धोखा दिया है उसे, और आज सब यही सोच रहे हैं कि, मगर अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपनी बीवी के साथ रहने का फैसला किया है, और मुझे इस बात पर कोई शर्मिंदगी नहीं। वो बोलते हुए आखिर में मुस्कुराया था, एक पुरसुकून मुस्कुराहट। और बिया, आत्मा के दिल में ये बात हो रही, उसे बताना भी मेरे लिए आसान ना था। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। उसे ये सच बहुत तकलीफ देगा, मगर मुझे उम्मीद है कुछ अरसे बाद वो मुझे माफ कर देगी, और शायद काशान भी। वो अफसरदगी भरी सांस हवा के सुपुर्द करता उठ खड़ा हुआ, और रिश्तों को जोड़कर रखने वाला था। इसके लिए रिश्तों को तोड़ना आसान न था। एनीवेज, इन बातों को छोड़ो, कल मेरे साथ चलने की तैयारी करो। कल शाम 6 बजे की फ्लाइट है हमारी। खजान अपनी जैकेट उतारते बोला। वो उठ खड़ी हुई। मामू शायद नाराज हो जाए मुझसे। वो जानती थी कि इसके जाने पर सब ही नाराज हो गए।
सबकी नाराज़गी की परवाह करेंगे तो अपने रिश्ते को ऐसे ही मझधार में छोड़ना पड़ेगा। इस वक्त सबके लिए हमें समझना मुश्किल है, इसलिए सबको वक्त चाहिए जो हम यहाँ से जाकर देंगे। तुम मेरी बीवी हो, मेरी मोहब्बत हो। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में सबसे अहम मकाम दे चुका हूँ। अब तुमसे पीछे हटना नामुमकिन है। तुम नहीं जानती तुम किस कदर मुझसे में समा चुकी हो। लड़की बेबस कर दिया है तुमने मुझे। क़ाज़ान जज्बों से भरपूर लहजे में बोलता उसे अपने साथ लगा कर जो धीमे से मुस्कुराई थी। आप वही अकड़ू क़ाज़ान है या कोई और? हाथ में शरारत से बोली क़ाज़ान कहका लगा के। उसे भी अपना वो कुड़ना और अकड़ू अंदाज याद आ गया था। वो सब तो तुम्हें प्रेशर में रखने के लिए किया था। तो मुझे अपनी जुल्फ का सीर मत करो, मगर फिर भी खुद को तेरा होने से बचा नहीं पाया। खुद तो मोहब्बत की है, मुझे भी इसी काम पे लगा दिया। वो शौक हुआ। मुझे भी आपने ही मोहब्बत पर मजबूर किया था, वरना मैं हरगिज भी आप जैसे खड़ूस इंसान से मोहब्बत न करते। वो शरारत से बोली थी। ग़ाज़ा ने दिलचस्पी से इसका चेहरा देखा, जहाँ इस वक्त मोहब्बत की अलवही चमक ने इसका चेहरा रोशन कर रखा था। वो बेख्तियार इसके चेहरे पर झुक गया, जो इस इक़दाम के लिए हरगिज तैयार न थी। जब कुछ देर बाद उसे आज़ाद करता वो पीछे हटा, तो वो गहरे सांस लेती, उसे घूर भी न सकी, जो मुस्कुरा रहा था। तुम जानती नहीं मैं ज़बानी इज़हार के मामले में जितना कंजूस हूँ, अमली इज़हार इतना ही ज़्यादा करता हूँ। अब तुम अपनी खैर मनाना। वो अपने हाथ से एक प्यार भरी जसारत करके वो फुर्ती फुर्ती से इसके हसार से निकली। इसका चेहरा शर्म से सुर्ख हुआ था। आपकी कॉफ़ी तो ठंडी हो गई है। वो बात बदलना चाहती थी, मगर ग़ज़ान का मूड कुछ और था। तो मेरे जज्बात की फिक्र करो, जिनको तुम्हारा कर्ब ही ठंडा कर सकता है। इसके लहजे में जो तपिश थी वो उसके गाल दहका गई थी। इसकी मानी खैसी पर वो सिमट कर रह गई। जिसको फिर से करीब कर चुका था। सोहा मेरे रूम में सोई है, मुझे जाना है चाहिए अब। वो आंखें झुकाए बोली, जिस पर ग़ाज़ा ने सर नफ़ी में हिला। सोने दो उसे, तुम्हारा तो यही ठिकाना है। अब वैसे भी मरी में गुजारी गई रात बहुत कम थी, मेरी तो तलब ही नहीं मिट सकी थी। इसकी गर्दन से चादर सरका था, वो बिन पिए बहक रहा था। वो अपने धक धक करते दिल को संभालती, इसकी मुसलसल मजबूत होती गिरफ्त से घबरा उठी। ग़ज़ान, वो मुझे तुम्हें खामोश करने का तरीका आता है मुझे। वो उसे गोद में उठाता आकर बेड पर लिटा चुका था। इसके ऊपर झुकते वो मानी खेज निगाहों से देखने लगा, जिसने सरनफी में हिलाते हुए उसे बाज रखना चाहा था। मैंने कहा था मुझे मोहब्बत को लफ्ज़ों में बयान करने से ज़्यादा अमल से साबित करना पसंद है। डर क्यों रही हो मिसेस? वो मुस्कुराता हुआ उसके दाएं बाएं गालों को चूम गया, फिर इसके गुलाबी होठों को चूमता। वो उसकी गर्दन तक आए और यही हाथमा की जान निकलने को थी। क़ाज़ान वो सिर्फ इतना ही बोल सकी थी, क्योंकि क़ाज़ान ने फिर उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया था। वो इस वक्त दीप कैफे के सामने खड़ी थी, जहाँ आज से 3 साल पहले वो कभी न आने का फैसला कर चुकी थी। मगर आज न जाने कैसे इसके कदम इस तरफ चले आए थे, जहाँ इसका सबसे बेहतरीन दोस्त था, और उसकी मोहब्बत भी था, मगर वो बदल गया था। वो आज खुद को बदल कर यहाँ आ गई थी। इसके सामने एक हसीन मंजर था, जहाँ एक खूबसूरत कपल टेबल पर आमने सामने बैठे बातों में मसरूफ थे। लड़की ब्लू सूट पर ऑफ वाइट लॉन्ग कोट पहने, बालों को जूड़े में मुकैद किए, जिसकी कुछ लटें चेहरे पर झूम रही थी, अपने सुर्ख और सफ़ेद और दिलकश नैन नक्श के हामिल चेहरे के साथ मुसलसल बोल रही थी। और उसके सामने बैठा इसका शौहर, जो पहले से भी ज्यादा हैंडसम हो चुका था, ब्लू पैंट पर ग्रे हाई नेक शर्ट और ब्लैक कोट पहने, इसकी बातें बहुत प्यार से सुन रहा था। वो गहरा सांस भरती इनकी तरफ कदम बढ़ा के, हेलो ब्यूटीफुल कपल, आई होप सो कि मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। वो मुस्कुराते लहजे में बोलती ग़ाज़ान और हातमा को चौंका गई। दोनों खुशगवार और हैरत भरे तासुरात लिए अपने सामने खड़ी पिया को देखने लगे, जो मुस्कुरा रही थी। आई कांट बिलीव दिस, तुम कब आई अमेरिका से? व्हाट अ सरप्राइज। ग़ाज़ान उठता हुआ बोलो, जो हमेशा की तरह इसके बाजू से दो पल को लगी। मुझे हफ्ता हो गया, आज सोचा तुम लोगों से मिलूं। कैसी हो ब्यूटीफुल लेडी? बहुत प्यार से हातमा के करीब आई, जिसने बहुत चाहत से उसे अपने साथ लगाया था। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो बिया? A1 देख लो, वो मुस्कुराती हुई बोली। इसके चेहरे पर थरकती मुस्कुराहट इन दोनों को ये बताने के लिए काफ़ी थी कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश थी। आओ बैठो। ग़ाज़ान के कहने पर कुर्सी पर टिक गई। मैंने सुना एक जूनियर ग़ाज़ान भी आया, वो नज़र नहीं आ रहा? बिया के सवाल पर वो दोनों प्यार से मुस्कुराए। जी बिल्कुल, आहिल ग़ाज़ान साहब, मगर वो हमसे ज़्यादा अपने दादा अबू और हानी फूफो के पास रहना पसंद करते हैं। इससे मिलने के लिए तुम्हें घर आना पड़ेगा। हातमा की बात पर बिया सर इस बात में हिलाती हंसती। इसीलिए तो मैं हातमा से यही बहस कर रहा था कि हमें एक और बेबी के बारे में सोचना चाहिए, जो हमारे पास रहने को तरजीह दे। मगर के उफ क़ाज़ान, आप भी ना। बिया, तुम अपने दोस्त को ज़रा थोड़ी सी शर्म करना सिखा दो। मैं तुम्हें अपने हाथ की मज़े की कॉफ़ी और केक खिलाती हूँ। फातिमा ग़ाज़ान की बात पर ख़ाइफ़ होती उठ खड़ी हुई। असल में वो दोनों को बात करने का टाइम देना चाहते थे। बदल चुके हो तुम? बियास के शरारती अंदाज पर बोली, जिस पर वो हंस दिया। एक बच्चे का बाप बन चुका हूँ, बदलना तो था ही। तुम सुनाओ, क्या कर रही हो आजकल? अंकल बता रहे थे मोहतरमा बहुत डिग्रियां इकट्ठी कर चुकी हैं। हाँ, डिग्रियां भी और एक अदद दूल्हा भी ढूंढ लिया है। बिया के इंकशाफ पर वो खुशगवार हैरत से चिल्ला उठा। वाओ, कब कहाँ से डाउनलोड किया? वो बहुत खुश था आज। उसके मन से जैसे एक बोझ उतरा था। उफ क़ाज़ान, तुम भी ना अमरीका से ताल्लुक़ रखते हैं जनाब? साहिर नाम है, नेक्स्ट वीक अपनी फैमिली को लेकर लंदन आ रहे, बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे। और तुम? क़ाज़ान के सवाल पर वो एक पल को चुप हुई, फिर मुस्कुरा दी। वो इतना अच्छा और कह रही है क़ाज़ान कि मैं इससे मोहब्बत करने से खुद को रोक नहीं पाई हूँ।
اب مجھے پتہ چلا ہے کہ محبت تو بس ہو جاتی ہے چاہے آپ کا ارادہ ہو یا نہ ہو، اور آج ہی مجھے پتہ لگا کہ تم کیسے 3 سال پہلے بے بس ہوئے تھے، اور میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے بھی اب۔ میں اپنی زندگی میں جتنا بھی خوش اور پرسکون سہی، مگر مجھے کبھی کبھی تمہاری اور کاشان کی یاد بے سکون کر دیتی تھی۔ میں تم دونوں کا قصوروار، چاہے جان کر یا انجانے میں۔ 2 ماہ پہلے کاشان کی شادی کی خبر نے جہاں مجھے خوشی دی تھی، وہیں آج تمہاری آمد نے مجھے پرسکون کر دیا، اور میری دعا ہے تم دونوں اپنی لائف میں وہی اصل خوشی، پیار اور محبت محسوس کرو جو میں ہاتما کے ساتھ محسوس کرتا ہوں۔ وہ صدق کے دل سے بولا تھا، بیا مسکرا کر سر اس بات میں ہلا کے۔ تبھی ہاتما ویٹر کے ساتھ ان کی طرف چلی آئی۔ قازان نے یہ بتایا نہیں ہوگا کہ میری وجہ سے ان کے کیفے کس قدر فیمس ہو چکا ہے۔ کافی بیا کے سامنے رکھتی وہ قازان کو مصنوعی خفگی سے دیکھتی بولی۔ وہ حسب عادت ہنس دیا تھا، جو بیا سے اپنی تعریفوں کی بل باندھنا شروع ہو چکی تھی۔ وہ اس میں کچھ چھوٹ نہیں تھا کہ ہاتما کے آئیڈیاز کی وجہ سے خازان کا کیفے اب 20% زیادہ فیمس ہو چکا تھا، اور وہ یہ بات مانتا بھی تھا، مگر اسے تنگ کرنے کے لیے چپ رہتا تھا۔ اس وقت بھی وہ بیا کو اس کی شکایتیں لگاتی، بہت پیاری لگ رہی تھی۔ خازان پیار بھری نظروں سے تکتا مسلسل مسکرا رہا تھا۔ تو میرے پیارے سے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پہ نہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تو ملتے ہیں کل نیکسٹ ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔